Yes, Foreign Exchange Management Act we studied that is समथिंग जहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है या इंडियन करेंसी बाहर जा रहा है, फॉरेन करेंसी अंदर आ रहा है, तो वो मैनेज कैसे होगा, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल जस्ट फ्रीली कीप ट्रेडिंग इन द करेंसी. सो टू मैनेज द रेगुलेशन, द एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन इंडिया एंड एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, you have Foreign Exchange Management Act, and every time there is a dealing, it has to be going through the authorized persons, people who are authorized by RBI, mostly the banks, and there are also other agencies जिसको authorize की है. So it has to be through them only, so that once you do it through them, all the data is filed by them with the RBI. So every data goes from the authorized agencies to RBI, so RBI will know how the funds are flowing, and that is why you have the Foreign Exchange Management Act to manage the funds. It also applies to individuals who are transferring funds, or say for example if you are going outside of India, तो तुम बाहर से करेंसी लेते हो तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई हो जाता है, बिकॉज यू गो टू सम एजेंट विल गिव यू सम मनी, और यू गो टू द बैंक विल गिव यू द मनी. सो व्हेन यू गिव द मनी, यू गिव योर पासपोर्ट नंबर, यू गिव द डिटेल्स ऑफ ट्रैवल, एवरीथिंग यू मेंशन देयर, सो दैट इज ऑल फाइल्ड विद आरबीआई. तो वो सारा डेटा आरबीआई के पास चला जाता है. ऑल्सो फॉर कंपनीज व्हेन दे आर टेकिंग फंड्स, अभी तो फेमा एकदम एक्टिवली काम कर रहा है. क्यों? Because a lot of funding is flowing from people sitting outside India into Indian companies, FDI जो बोलते हैं. So again that is governed by FEMA. So all foreign direct investments which are coming into the company are governed by FEMA, by the banks, authorized personnel, and it is going through RBI. So RBI is monitoring everything that's happening under FEMA. Now what are persons here? Person includes any individual, HUF, company, firm, AOP, BOP, every artificial judicial person, which is fine. बट यहाँ पे एक नया ऐड हुआ है जो दूसरी एक्ट्स में नहीं है, एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन. तो एजेंसी जो है इज अगेन समथिंग विच इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. अगर तुम्हारा ब्रांच है तो वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आएगा. Person resident in India is person who has stayed in India for a period of more than 182 days. Now इसमें एक important provision है कि जो यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है कि अगर वो बाहर जा रहा है, ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी के ऊपर ही आने वाले हैं. दिस चार्ट एंड दिस चार्ट विच वी हैड रिटन, the table which we had formed, 100% case study will come from this table only. This table in the sense not the same example, but one of the scenarios which is mentioned here. So if you don't have it, please ensure you beg, borrow, steal, whatever, and get this with you so that you know what can come for the examination. Even if you see CA final के जो questions है, जो मैंने last few attempts के questions निकाले थे जो क्लास में डिस्कस किए थे, वो मैंने ग्रुप पे भी भेजे हैं, वो भी सारे इसी के ऊपर है क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाला है और किसी चीज के ऊपर नहीं आने वाला है. नाउ ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days? नहीं. पहले यस करते, सॉरी, यस, इंडिया के अंदर रहा है इंसान. डिड ही गो आउटसाइड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर? तो प्रीवियस ईयर में 182 days है. ये साल में वो करंट ईयर में आउटसाइड इंडिया गया था? नहीं गया है. नहीं गया है तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया. अगर वो आउटसाइड ऑफ इंडिया गया, दिस एंड योर इनकम टैक्स, प्लीज डोंट मिक्स. इसमें जो है वो यहाँ पे है, इनकम टैक्स में जो है वो वहां पे है, तो उसका इधर दिमाग नहीं लगाने का. Now, if he has gone outside of India for 3 purposes, employment है, medical treatment है, और getting a job, medical treatment and education. So, if he has gone outside India for these 3 purposes, no, then he is a person resident in India. Vacation बनाने को गए तो person resident in India, but he has gone there for other than for the 3 purposes which are mentioned, then he will become a person resident outside India. Same way, अगर बाहर का इंसान है जो बाहर 182 days रहा है, and now whether he has come to India, and in this, did he come or stay in India in the current year? Yes, he stayed. If he stayed for other than for 3 purposes, then he is a person resident in India. Other than 3 purposes, then he is still a person resident outside India. तो अगर कोई फॉरेनर है, ताजमहल देखने के लिए इंडिया में आया है, तो he is still a person resident outside India. But if he has come here for the purpose of employment, then he is a person resident in India.
नो, देन ही इज, इफ ही हैज स्टेड आउटसाइड ओनली तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही है. नाउ यहाँ का प्रोविजन एक बार देखेंगे. सीए इंटर का स्टूडेंट है, मतलब वो 182 डेज इंडिया में ही रुका है, नो ट्रैवल अब्रॉड, तो वो रेसिडेंट है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है. मोर देन 182 डेज इन इंडिया, मतलब वो सीए स्टूडेंट ही है, सेम है प्रोविजन. गोज टू यूएसए फॉर वेकेशन, वेकेशन है तो क्या 3 पर्पसेस है? नहीं है, तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, सिंस नॉट गोइंग आउट फॉर 3 पर्पसेस. गोइंग टू यूएसए फॉर एजुकेशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा. एक आरबीआई का क्लैरिफिकेशन सर्कुलर है. स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड पीआरओआई सिंस यूजुअली स्टूडेंट स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे एंड कॉस्ट ऑफ स्टडीज. अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है तो येस, बिकॉज ही इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर 3 पर्पसेस. मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अनसर्टन पीरियड, येस, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सिंस वन ऑफ दोज 3 पर्पसेस. अभी वो गया है वहां पे. द पेरेंट्स ऑफ सीए स्टूडेंट गोज टू यूएसए टू मीट हिम, तो वो लोग यहाँ पे इंडिया में है, अब वो बाहर गए. तो ट्रैवल टू यूएसए, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, ट्रैवल टू यूएसए टू मीट सन, प्लस सॉरी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अनसर्टेन पीरियड, मतलब सोचा बच्चे को भी मिलके आते, मेडिकल ट्रीटमेंट भी करना है. तो यहाँ पे सिंस वन ऑफ द 3 पर्पसेस है, तो इवन दो 182 डेज है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा. Foreigner visiting India to see Taj Mahal for 1 month, 3 months, whatever, then person resident outside India visits India and appointed as CEO in India in May 23. तो less than 182 days in the previous financial year, तो person resident in India होगा. Visits India for pursuing, सॉरी हाँ मैंने बराबर बोला ना, हाँ, अगर इंडिया में विजिट किया है बट अपॉइंटेड एज सीईओ तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है. विजिटिंग इंडिया फॉर परस्यूइंग स्टडी, तो अगर वो ये साल आया है तो प्रीवियस ईयर में लेस देन 182 डेज वो रहा है, तो इसके लिए वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है. बट जब भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी उसका पढ़ाई कंटिन्यू हुआ तो तभी वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा. एनी क्वेश्चंस एनीवन? या इसको समझाऊं वापस तुम लोग को एक बार, जैसा अपन ने क्लास में पढ़ा था. इट्स द सेम एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट पुट इट इन द चार्ट फॉर्म सो दैट वो रिमाइंडर होगा. एक बार देख लेते हैं. One second, I will just open that FEMA regulations here. अगर मैं 2 साल देखूंगी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर मोर देन 182 डेज है तो मेरा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही है. लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं इंडिया के बाहर जाती हूँ, देन इफ आई एम गोइंग फॉर 3 पर्पसेस, व्हाट आर द 3 पर्पसेस? बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, और गोइंग फॉर अनसर्टन पीरियड, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है. तो गोइंग फॉर अनसर्टन पीरियड, मुझे पता नहीं है मैं कब वापस आऊंगी. तो अगर ये 3 पर्पस के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, देन आई विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया इवन इफ आई हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. Same scenario, I've stayed in India for more than 182 days in the previous financial year, but now I'm going to meet my sister there. My sister is in US, I go to meet her. Is it, will I become person resident outside India? No, I'll be a person resident in India. I go there for a vacation, will I be person resident outside India? No, I'm person resident in India. मेरे को कोई प्लास्टिक सर्जरी कराने का है, तो मेरे को पता है कि मेरे को 15 दिन का टाइम है, उसमें सब मेरा चेंज होएगा शक्ल और फिर मैं वापस आने वाली है इधर. तो यहाँ पे अगेन मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ सर्टेन पीरियड की 15 डेज में पूरा सर्जरी खत्म हो जाएगा और मैं वापस आ जाएगी. बट अगर मैं जा रही हूँ बाहर फॉर अ सर्जरी विच इज गोइंग टू टेक, आई डोंट नो हाउ मच टाइम, आऊंगी नहीं आऊंगी, नो सर्टेनिटी, देन इट विल बी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया. I will send these concept charts on the group, correct? So ये समझ में आया. तो अगर more than 182 days in the previous financial year अगर मैं इंडिया में रही हूँ और मैं इंडिया के बाहर जाती हूँ घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए, कुछ करने के लिए जो डेफिनाइट पीरियड के लिए हो, मुझे पता है मैं वापस आने वाली हूँ, तो मेरा स्टेटस विल बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज पर फेमा. नाउ
पहले के साल में मोर देन 182 डेज में रही इन इंडिया, सॉरी, एंड नाउ आई एम गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एनी ऑफ द 3 पर्पसेस, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और फॉर द पर्पस ऑफ अनसर्टेन पीरियड। अगर ये 3 पर्पस के लिए मैं अगर इंडिया के बाहर जाती हूँ तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। सेम विल अप्लाई रिवर्स ऑल्सो, बट रिवर्स में अगर वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज नहीं रहा है बट इंडिया में आया है फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग द सीईओ, तो ये साल में तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही होगा, बिकॉज पहली बार आया है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 182 डेज नहीं हुआ है इसके लिए। बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बिकॉज ये साल वो रह गया, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 182 डेज रह चुका है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही विल बिकम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। But if he is coming here to see the Taj Mahal, he is coming here to meet me, I am sister here, तो अगर मेरे को मिलने को कोई यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे कोई सपोज मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, चांसेस बहुत है, आई हैव रिलेटिव्स हु वुड कम टू इंडिया एंड डू डेंटल ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज़ वेरी चीप। तो अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए एंड वो लोग को मालूम है डेंटल ट्रीटमेंट 1 महीना चलने वाला है, सब बनाएंगे डेंचर वेंचर एंड देन दे विल गो बैक, सो नाउ दे नो दे आर कमिंग फॉर 1 ईयर, तो इसके लिए वो बनेगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होगा। लेकिन अगर वो ही ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पे आ रहा है विच नो वन वुड डू, बट सपोज आ रहा है फॉर एन अनसर्टेन पीरियड नॉट नोइंग व्हेन आई विल गो बैक, देन ही विल बिकम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? और ये चार्ट वापस भेजूंगी तो एक बार प्रॉपरली देख लेना। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल था जो तुम्हारा मॉड्यूल का था, जो मैंने तुमको बोला था प्लीज करके जाओ क्योंकि ये थोड़ा अजीब है, अलग है। आलिया भट्ट इज अ ब्रिटिशर, शी फाइल्स फॉर 12 फ्लाइज है, फाइल्स नहीं है, फ्लाइज है, उड़ती है आसमान में, फॉर 12 days in a month and then takes a break for 18 days. During the break, she is accommodated in base where airline is headquartered, that is in Mumbai. In current financial year, she was headquartered in Mumbai for more than 182 days. In such a scenario, even though she has stayed in India for more than 182 days, she will be considered to be a person resident outside of India. काहे को? क्योंकि वो compulsive stay था, उसको ऑप्शन दिया रहता तो क्या इंडिया में रहती थी? नहीं, उसको इंडिया में नहीं रहने का था, उसको वापस ब्रिटिश जाने का था, उसका जिधर से भी आई थी वो। लेकिन 12 days का एज पर हर एयरलाइंस का पॉलिसी, शी हैड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 12 days in a month and then fly 18 days. So because she had to take this break and it was a compulsive stay, even though she has stayed in India for more than 182 days, she will be considered to be a person resident outside of India. Any questions here? In the above scenario, if she had been employed in Mumbai branch in the airlines, she would be considered to be PRI, मतलब person resident in India, अगर वो बॉम्बे में employment ले लेती तो। Above scenario does not apply to individuals, people other than individuals. Citizenship is not a criteria for determining whether in India or outside India. Residential status under FEMA is not for a year, it is for a particular date, and hence it is different from income tax. That is why I told you please don't mix FEMA and income tax. Income tax में जो सीखा है वो तुम्हारा बुद्धि उधर ही रखो, FEMA में जो सीखेंगे वो इधर। Any person, body corporate, registered or incorporated in India is a person resident in India. Now, ये अपने को समझ गया, अगर मैं इंडिया में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज हूँ और बाहर घूमने के लिए जाती हूँ, दांत का ट्रीटमेंट करने के लिए 15 डेज जाती हूँ, प्लास्टिक सर्जरी करने महीने के लिए जाती हूँ, वॉट एवर आई एम गोइंग देयर टू डू, I am going to come back, I know I am going to come back, then if it is not for business, employment or uncertain period, then I will be a person resident in India only for the purpose of FEMA. Now, if I am in India for more than 182 days, मैं तुम लोग को सिखा ही रही थी, करेक्ट, पूरा फाइनेंशियल ईयर सिखाया। अभी नेक्स्ट ईयर मेरे को उधर जॉब मिल गया कि चलो तुम अभी वहाँ के बच्चों को सिखाओ। मैंने बोला यहाँ के बच्चे है भी बेकार, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, तो मैं वहाँ पे चली गई। नाउ आई हैव गॉन देयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हेंस आई विल बिकम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ अगर कोई फॉरेन का बंदा है जो इंडिया में आ रहा है फॉर मोर देन 182 डेज, ही हैज स्टेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट हियर इफ ही इज कमिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट,
तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ये फाइनेंशियल ईयर तो बिकॉज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में नहीं रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के लिए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से सिंस ही may qualify for the 182 days का criteria, then he will be a person resident in India. अगर एयर हॉस्टेस जैसे लोग हैं जिनको फ्लाइंग के टाइम पे इंडिया में रहना पड़ता है कंपल्सरीली, then in that case because it is not out of option, वो लोग को यहाँ रहना पड़ता है because the rules are such, even though they stay in India for more than 182 days, they will be considered to be person resident outside India only. They will not be considered to be person resident in India. But if that person takes up a job in India while at the staying in India, then they will be considered to be person resident in India अगर more than 182 days हो गया तो. क्लियर है. इसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं इन द टेक्स्ट बुक, इन द मॉड्यूल, बेसिकली वट एवर एग्जाम्पल्स आर देयर, thoroughly do each and every example, read each and every example. फेमा का जो फाइल मैंने अभी ग्रुप पे शाम को भेजा है अबाउट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन सीए फाइनल व्हेन फेमा वाज इन सीए फाइनल, वो वाले जो क्वेश्चंस है वो करके जाना. क्वेश्चंस उसी में से कुछ ना कुछ आने वाला है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है. आरटीपी May 24 का आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज आस्क्ड फॉर फेमा, एक बार देख लेते हैं जो भी पूछा है. तो May 24 के आरटीपी में अगर कोई क्वेश्चन फेमा का और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का है वो भी पढ़ के जाना. हो गया, उतना तुमको पढ़ के जाने का है, उसी में से कुछ ना कुछ आएगा. वेरी श्योर अबाउट इट. ओके, गलत भी हो सकता है बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट उसी में से आएगा. नाउ अगर ऑथराइज मेरे पास ऑथराइज पर्सनल जो होते हैं, whatever transactions of foreign currency I have to do it through the authorized personnel only, because these authorized personnel are registered with RBI and they're monitored by RBI. I cannot do any transaction which is not registered with them, not monitored by them. So if I do that, that is something which is not allowed. जैसे यहाँ पे लिखा है, make any payment to or for the credit of any person resident outside India received otherwise through an AP. Any payment or AP is authorized personnel. Enter into any financial transaction to acquire any assets outside India. तो ये वाले कोई भी जो transactions है, ये मेरा बुक बराबर से नहीं दिख रहा है यहाँ पे. I will send this file to you guys. So these all transactions are considered to be not permitted. होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मैं अपने घर में नहीं रख सकती तिजोरी में. अगर मेरे को रखने का है तो मेरे को आरबीआई का अप्रूवल चाहिए. तो घर पे अगर कुछ फॉरेन करेंसी है तो रख दो. $1-2 का नोट या सिक्का बचा के रखा है तो कुछ नहीं, कोई देखने वाला है तो रख सकते हैं, ठीक है. बट यू कैन नॉट होल्ड फॉरेन फंड्स. इफ इट इज फाउंड दैट यू आर होल्डिंग फॉरेन फंड्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ फेमा एंड पेनल्टी इज लेविएबल ऑन यू. Then coming to current account transactions and capital account transactions. Current account transactions which are ordinary transactions, ordinary transactions which are done in the ordinary course of business or foreign trade, include short term banking and create facility in the ordinary course banking, and something is wrong there. जो ऑर्डिनरी बैंकिंग, शॉर्ट टर्म फंड्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम बैंक्स अगर लेते हैं, then in that case it will be considered to be your current account transaction. Payment in the form of interest or loan on income from investment, living expense of parents, spouse or children living abroad, and expenses in connection with foreign travel education. So अगर मैं फॉरेन जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, मैंने सोचा बस पढ़ाई कम की है मैंने और पढ़ाई करना है मुझे, एंड नाउ भाविक सर पे some money to my account, then that will be considered to be a current account transaction. तो current account transaction मैं आराम से कर सकती हूँ. या अगर मैं बाहर हूँ और मैंने यहाँ पे लोन लिया है I want to make that payment here, then again I can do. Most of the people who are outside India or studying, they always have a education loan or something in India and they keep paying that. So that is permitted because वो current account transactions है. Capital account transactions इतना सीधा नहीं है. Capital account transactions में there is some problem. क्या problem है? Prohibited transactions है. Can you give me a minute please? I don't like how it looks. नहीं है.
यूएस पे थे अपन. Yes, see from here it's much better. Won't be as good as my notes, but ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं. So नाउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है फॉर, उसमें अलग अलग 3 शेड्यूल है, ये अपन ने किया है क्लास में, करेक्ट. जो लोग नहीं थे, अथर्व आई थिंक यू वर नॉट देयर व्हेन वी डिड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, प्लीज गो थ्रू द डिटेल्ड लेक्चर्स जो थे ना फॉर फॉरेन एक्सचेंज, गो थ्रू देम वंस इफ यू फील देयर इज एनी कंफ्यूजन इन वट एवर इज एक्सप्लेन्ड हियर, ओके, बिकॉज इफ यू ट्राई एंड सिट एंड रीड द नोट्स यू मे गेट कंफ्यूज्ड. या शेड्यूल 1 में ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते. शेड्यूल 1, 2 एंड 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चंस विल कम ऑन से लॉटरी ट्रांजैक्शन किया है तो वेदर इट इज परमिटेड नॉट परमिटेड, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सो व्हाट इज प्रोहिबिटेड? लॉटरी ट्रांजैक्शंस, रेस राइडिंग और एनी अदर हॉबी, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड और प्रिस्क्राइब मैगजीन्स, फुटबॉल पूल, स्वीपस्टेक्स, payment of commission on exports towards equity investment in joint venture or wholly owned subsidiaries, dividend balancing, then commission on exports under rupee state credit route except commissions up to 10% of the invoice value, callback services, interest income on funds in non-residence special rupee account. तो ये सारे जो transactions है ये prohibited list में आ रहे हैं तुम्हारे. सेकेंड है शेड्यूल 2 जो तुम्हारा अप्रूवल रूट ऑफ गवर्नमेंट है. सो हाँ, तुम्हारा ये कल्चरल टूर, दिस वाज आस्क्ड RTP May 24, करेक्ट. नाउ दैट आई सी, आई रिकलेक्ट. एंड लॉटरी था शायद से, 2 क्वेश्चंस थे, लॉटरी एंड कल्चरल टूर्स का. तो कल्चरल टूर है, इसमें तुमको अप्रूवल रूट लेना है. एडवर्टिजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, अगेन अप्रूवल रूट लेना है. रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑन वेसल चार्टर्ड बाय अ PSU, payment of import through ocean exports by government department, multimodal transport operators making remittance to their agent abroad. multimodal मतलब बहुत सारे modes use करके करते हैं वो. hiring charges of transporters by TV channel internet service providers, container detention charges prescribed by the Director General of Shipping, remittance of prize money, sponsorship of sports activity abroad by person other than international, national or state level sport body if the amount involved is more than $1 lakh, and remittance of membership for PNI club. So these are the things where government approval is required. Unfortunately, there is no this thing कि ये कैसे याद रखूँ, ये तुझे याद रखना ही है, जिधर ब्रश करता है उधर ये चिपका के रख. When we were doing in the main class, मैंने तुम लोग को कुछ कुछ बोला था क्या क्या यूज कर सकते हो याद रखने के लिए. So if that helps in remembering, then that, but you will have to remember, there's not much we can do because ये cultural tour वाला पूछा है, ट्रांसपॉन्डर और ये सब पूछने के चांसेस कम है, और लॉटरी टिकट्स का पूछा है तो वो पूछ सकते हैं तुमको, बट दूसरी चीज भी आ सकती है. सो जस्ट सी द क्वेश्चंस एंड सी those questions which are given for previous years and the examples, and hopefully उसके बाहर नहीं आना चाहिए. Then facility for individuals, अगर individuals है तो liberalized remittance scheme आता है, मैंने तुम लोग को समझाया था, जहाँ पे 2,50,000 USD तक individuals hold कर सकते हैं, and this will be for private visits to any country except Nepal and Bhutan, gift or donation, going abroad for employment, emigration, maintenance of close relative abroad, travel for business or attending a conference, or accompanying as an attendant to a patient going abroad for medical treatment. तो यहाँ पे 2,50,000 तक मैं जाऊँगी तो मेरे को एयरपोर्ट पे कोई कुछ नहीं बोलेगा. इसके ऊपर गई तो मैं जाएगी, अगर विदाउट अप्रूवल गई तो.
in connection with medical treatment abroad, studies abroad and any other current account transactions. इसके ऊपर किस किस में जा सकते हैं ये देखो. For purpose of 4, 7 and 8. हाँ 4 इमिग्रेशन जब मेरा होता है, 7 मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड एंड स्टडीज अब्रॉड, वो बोलता है may avail of exchange facility for amount in excess of limit prescribed under the liberalized remittance scheme if it is so required by the country of immigration, medical institute respectively. तो अगर मेरा कॉलेज मुझे बोलता है कि फीस ही 3 लाख USD है and if I am carrying 3 lakh USD along with that letter, then it is not a problem. If I am going for a medical treatment, is like कि 5 lakh USD है, then I am carrying more than 5 lakh USD because I have that letter from those authorities, then it is fine. But it is only for going abroad for if you are settling down there basically, immigration अगर कर रहे हो तो अगर तुम क्या बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो या स्टडीज अब्रॉड, अगर ये 3 चीज में इफ यू हैव सम लेटर विच स्टेट्स दैट यू रिक्वायर मोर देन 250 USD, देन यू कैन गो आउटसाइड द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड बोरो दैट 250,000 के ऊपर का अमाउंट एंड कैरी इट, एंड देखो एयरपोर्ट पे कोई कुछ नहीं बोलेगा. बट एनीथिंग अदर देन दैट, घूमने को जा रहे गिफ्ट देने के लिए, एनीथिंग यू कैरी मोर देन 250,000 दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वायलेशन ऑफ FEMA regulations. Now for person other than individuals, liberalized remittance scheme is only and only for individuals. For person other than individuals, you require first RBI approval चाहिए, prior approval चाहिए, and then there are these different provisions जो चार्ट पे मैं तुम लोग को भेजती हूँ. डोनेशन अगर 5 लाख के ऊपर है, commercial transaction USD 25,000 or 5%, remittance including USD this thing for per project or any consultancy service on infrastructure projects, and remittance exceeding 5% on investments brought into India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses. Again, I would say this is less likely to be asked. Liberalized remittance scheme का वेरी लाइकली, मेरे टाइम पे भी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वो लोग ने पूछा था तो 100% मेरे एग्जाम में मेरे को ये क्वेश्चन आया है, तो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंड उसमें भी ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर पूछने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसमें लिमिट एक्सेस है, तो वो एक्सेस लिमिट का क्लॉज तुझे लिखना पड़ेगा. तो वेदर यू नो दिस क्लॉज और नॉट, वो टेस्ट करने के लिए वो पूछेगा. तो ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर चांसेस आर वेरी हाई. ये अदर देन इंडिविजुअल्स का थोड़े लेस चांसेस है कि वो पूछेगा. अगर पूछ लिया तो मुझे गाली मत देना, मजाक कर रही हूँ, डरो मत. नाउ capital account transaction, whatever is affecting your assets or liabilities is your capital account transaction. तो जहाँ पे asset liability तुम्हारा change होता है तो वो capital account transaction होएगा. I would want to show you the chart. Does someone have a chart which we can use here? ईश, बहुत ही गंदा दिख रहा है. ये वाला चार्ट है, ये मैं तुम लोग को भेजती हूँ. तुम लोग ये चार्ट से देखो कि कौन से शेड्यूल 1 में कहाँ पे अप्रूवल है, कहाँ पे अप्रूवल नहीं है. सो फर्स्ट वाला है वहाँ पे अप्रूवल है, यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शंस है, एंड ये थर्ड वाले जो है वो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस है. सो जस्ट गो थ्रू दीज ट्रांजैक्शंस एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज ट्रांजैक्शंस. सो what are things that are important here before you start feeling lost? First मैंने पढ़ा था कि जो भी अपना पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये वाला चार्ट, और उसके नीचे जो अपन ने एग्जाम्पल वाइज किया है 182 डेज कब देखना है नहीं देखना है, 3 पर्पसेस कौन से है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस वेरी हाई. सेकेंडली अपन ने क्या पढ़ा, क्या पता, हाँ एग्जाम्पल्स मैंने बोले जो भी मॉड्यूल में है प्लीज एंश्योर दैट यू रीड इट. इट्स देयर इन अ टेक्स्ट बुक ऑल्सो, सो मॉड्यूल इफ यू डोंट वांट टू ओपन. देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलता है कि अपना जो भी फॉरेन फंड्स है दैट यू कैन नॉट होल्ड, दैट इज समथिंग विच इज
not permitted. Then coming to current account transactions, permitted transactions है, बट जो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस है, जो ट्रांजैक्शंस नहीं ले सकते या जिसको आरबीआई का अप्रूवल लगता है, दोज शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 वाले जो ट्रांजैक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट है. शेड्यूल 3 में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आता है. लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में मेडिकल या एजुकेशन के लिए जाता है, तो 2,50,000 का पहले तो लिमिट याद रखो, वो इम्पॉर्टेंट है. 2,50,000 के ऊपर कभी कभी जा सकता है, वो 3 सिनेरियोज याद रखो, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन लगेगा. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में व्हाट आर द प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस, परमिटेड ट्रांजैक्शंस एंड अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शंस, वो तीनों एक बार लिस्ट देख लेना, उसमें से प्रोहिबिटेड वाला शायद पूछ सकता है तुम लोग को, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे कैन आस्क यू इन FEMA, इन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का भी 1 पेजर आई विल सेंड इट टू यू. सो दैट गेट्स यू टू द एंड ऑफ योर रिविजन. Before I start telling you about how to write papers and all of that, any questions that you have or anything that you want me to send it to you before ending the lecture, you can just let me know and I will be happy to send it out. So currently everything that you need to prepare for your examination, तुम्हारा MTP, RTP, past exam questions, very important. देख के जाओ, इंटर का एग्जाम है, फाइनल नहीं है, वही का वही घिसा पिटा क्वेश्चंस पूछता है, तो गो थ्रू देम एंड रीड दोज एग्जाम्पल्स जो अपने टेक्स्ट बुक में है, रीड दोज, गो रीड एंड गो, बिकॉज वही सब केस स्टडी में पूछता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको अलग से पूछेगा. अपने चार्ट्स है, सो जब भी तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अकाउंट्स राइट नाउ, और यू आर डूइंग ऑडिट, और यू आर डूइंग एनी सब्जेक्ट, एंड उसके साथ में तुमको लगता है कि चलो मेरे को रात को रिविजन के लिए कुछ देखना है, तो गो थ्रू द चार्ट बुक, रिवाइज इट वंस, एंड यू विल नो दैट यू नो ओके दिस इज व्हाट इज